آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام باقاعدہ تلاوت قرآن مجید سے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حضرت علامہ غلام مجتبیٰ نعیمی صاحب کو کہ وہ آئیں تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدقت يا رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان
عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ارباب قادری کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. تاجدار ختم نبوت. یہ 1200 صحابہ کرام جنگ یمامہ کے اندر اس نعرے کے لیے ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. حبیبا اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں آیاں حبیبا اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں آیاں اللہ نو تو پیارا لگنے تایوں رب نے بھی خوشیاں منائیاں اللہ نو تو پیارا لگنے تایوں رب نے بھی خوشیاں منائیاں عرب شریف دیا سرداراں آمنہ بی بی دیا دلداراں عرب شریف دیا سرداراں آمنہ بی بی دیا دلداراں تیرے جیا سونا سونیا کتھے جم دیاں نت نت ماواں تیرے جیا سونا سونیا کتھے جم دیاں نت نت ماواں حبیبا اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہاراں آیاں زلف تیری دے کنڈل سوہنے مولیندے نے دل من موڑے زلف تیری دے کنڈل سوہنے
لیندے نے دل من موڑے چند صدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں چند صدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں حبیبا اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہاراں آیاں رحمت دی تساں جدو کھولی پاک حلیمہ بھر لیت جھولی رحمت دی تساں جدو کھولی پاک حلیمہ بھر لیت جھولی لے گئیو خزانے رب دے ہتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں لے گئیو خزانے رب دے ہتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں حبیبا اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہاراں آیاں اللہ نو تو پیارا لگنے تایوں رب نے بھی خوشیاں منائیاں حبیبا اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہاراں آیاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں شان تیری نہیں مکنی کئی صدیاں مکنے اوتے آئیاں شان تیری نہیں مکنی کئی صدیاں مکنے اوتے آئیاں حبیبا اچھی شان والیا جے تو آیوں تے بہاراں آئیاں ماشاءاللہ ہم تمام کی خوش نصیبی کہ آج عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بسلسلہ حیات و خدمات حضرت امام فضل خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی علیہ میں ہم شریک ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرفت نصیب فرمائے ہماری آج خوش نصیبی ہے کہ آسمان علم کے چمکتے دھمکتے تارے میرے استاد گرامی استاذی المکرم استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر جہب العلماء حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب دامت فیوزہم آپ خطاب ذیشان فرمانے کے لیے اپنے افکار و آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں اور یقیناً ہمارے مسجد اعلیٰ کے خطیب و امام جماعت اہل سنت پاکستان کے صوبائی رہنما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد حسین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمارے مدعو کردہ مہمان شخصیت انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے سابق مرکزی صدر جناب محترم شمس المصطفیٰ اسدی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں ہم آپ کی تشریف آوری پر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور ہمارے حضرت علامہ مولانا خالد حسین نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مولانا خالد حسین اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ صفورہ چورنگی سے تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد امیر بخش مجددی نعیمی دامت برکاتہم العالیہ
حضرت علامہ مولانا عباس علی زنگیزہ مجددی نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب قاری محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سبھی جو بھی اہل محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے احباب یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھے۔ اللہ خیر آبادی کا قصیدہ نعتیہ اس کے چند شعر پڑھو، جیسے زبردستی پڑھ رہے تھے نا، یہ تین شعر پڑھ لو اور اس کے بعد آگے سے چند کچھ شعر پڑھ لو۔ قبلہ استاذ فرما رہے ہیں کہ جس عظیم شخصیت کی یاد میں جنہیں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنگ آزادی، جنگ عظیم کے وہ عظیم مرد مجاہد حضرت علامہ امام فضل خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی کہ جن کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں، تو آپ احباب بھی جانیں کہ وہ کس قدر قداور عالم دین تھے۔ تو ان کا لکھا ہوا کلام، اس کے کچھ اشعار کہ آپ نے عربی زبان میں کتنی مہارت کے ساتھ شاعری پیش کی اور اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ کس انداز سے پیش کیا، تو آپ بھی انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے تو بڑا سرور آئے گا۔ قصیدہ برودہ شریف کا پہلا شعر پڑھ کر حضرت نے جو اشعار لکھے ہیں پھر اس کی طرف چلیں گے، مل کر پڑھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مشفع شافع ماح شفاعته مشفع شافع ماح شفاعته تمحو كبائر فجار وفساق مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الأبرار أحمدهم محمد سيد الأبرار أحمدهم في حسن خلق وفي تهذيب أخلاق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الأبرار أحمدهم في حسن خلق وفي تهذيب أخلاق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا هادي الخلق أدركني وخذ بيدي يا هادي الخلق أدركني وخذ بيدي فقد تورطت في غيب بعيهاقي مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ حضرت کا لکھا ہوا کلام تھا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ دوست، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام جو سرکار کے اس غلام کی حیات و خدمات سے ناآشنا تھے، آج قبلہ استاد گرامی کے ملفوظات عالیہ سماعت فرمانے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے دل اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ عظیم شخصیت علامہ امام فضل خیرآبادی رحمہ اللہ تعالی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی کا اسم گرامی لوں تو آپ کے دل عقیدت سے جھوم جائیں. اور کیوں نہ جھومیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدتوں کے ہمیں سبق ایسے پڑھائے کہ آنے والے زمانے بھی عشق مصطفیٰ کی گونج سے اور عشق مصطفیٰ کی مہک سے مہکتے رہیں گے. لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ اعلیٰ حضرت جو اس قدر شان کے مالک ہوئے اور سرکار کی غلامی میں اللہ نے انہیں وہ معراج عطا فرمائی، وہ اگر کسی در سے اکتساب علم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جو آپ کے استاد گرامی ہیں انہیں بھی فیض عطا کرنے والا علامہ امام فضل خیرآبادی نظر آتے ہیں. تو انشاءاللہ استاد گرامی جب اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں گے تو پھر یقیناً میرے اور آپ کے علم میں کئی گنا اضافہ ہوگا. میں استادوں کی اجازت سے ہمارے مہمان دوست و ناصری پیش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی استاد گرامی کے افکار و آراء سے ہم مستفیض ہوں گے. میں انتہائی مؤدبانہ ملتمس ہوں محترم جناب محمد عدیل سجاد بھائی سے کہ آپ تشریف فرما ہوں اور پیارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ناز میں اپنی حاضری پیش فرمانے کا شرف حاصل کریں. نعروں سے اپنے عقیدت اور جذبوں کا اظہار کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہم تو یہ ماشاءاللہ اس پرسکون فضا کے اندر نعرے لگا رہے ہیں، اور امام فضل خیرآبادی رحمہ اللہ تعالی وہ شخصیت، ایسا ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مفلوق الحال بندہ دین کی طرف آ جائے، یہ کوئی بعید نہیں ہے. جو حالات کا مارا ہوا کسی مدرسے میں پہنچ جائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. لیکن جو زندگی، جس کی زندگی آسائشوں میں گزر رہی ہو، جس کی زندگی سکون میں گزر رہی ہو، جس کی زندگی ناز اور نخروں میں گزر رہی ہو، وہ اگر لپک کر، وہ لوٹ کر پھر دین کی طرف اس انداز سے آئے کہ پھر دین کا ہی ہو کر رہ جائے، جس کا جینا مرنا شب و روز دین کے لیے ہو جائیں، تو یہ امام فضل خیرآبادی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہیں جو ان کے حالات نے مدارس میں پہنچایا. ارے یہ تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ مدرسے جائیں تو ان کی سواری کوئی عام سواری نہیں بلکہ ہاتھی پر مدرسے کی طرف روانہ ہو جائیں. یعنی ناز اور نخرے کا یہ عالم ہے، آسائش کا یہ عالم ہے کہ ہاتھی پر سوار ہو کر مدرسے جائیں. اب اندازہ کیجئے کہ یہ شخص آخر جہاد کی طرف کیسے آئے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے کیسے آئے. تو یوں سمجھ لیں کہ ان کا اخلاص ایسا تھا کہ سرکار نے اپنی نوکری کے لیے انہیں قبول فرما دیا. تو ان سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج ختم نبوت، تاج سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت محترم محمد عدیل سجاد بھائی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں اپنی حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے. مختصر نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں گے. محبت کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پہ کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے ہی بہترین انداز سے
नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। मोहतरम जनाब सज्जाद अदील साहिब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बड़ी खुश नसीबी है कि अजीम इमाम के नाम से ये प्रोग्राम मंसूब है। वो इमाम जिसने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा जिहाद दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस फतवा जिहाद की बरकत से अल्लाह ने मुसलमान को पाकिस्तान अता फरमाया। और इमाम फजल हक खैर आबादी कोई आम नाम नहीं, 2 सदियों के अंदर जितने भी मदारिस के अंदर उलमा और तुलबा पैदा हुए हैं वो किसी ना किसी तरीके से इमाम फजल खैर आबादी के शागिर्द लगते हैं। और आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के जो उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस मोहम्मद अब्दुल अली रामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बराह रास्त इमाम फजल हक खैर आबादी के शागिर्द हैं। और इमाम फजल हक खैर आबादी की जिंदगी को देखें कि जब आप मसनद तदरीस पर बैठते हैं तो आप इमामुल मुदर्रिसीन कहलाते हैं, और जब आप खिताबत के मैदान में आते हैं तो आप खिताबत के इमाम कहलाते हैं, और जब आप मिंबर पर बैठकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दीन की तरफ बुलाते हैं तो एक बेहतरीन मुकर्रिर नजर आते हैं। और जब मैदान अमल में अंग्रेज के खिलाफ निकलते हैं तो इमाम आजम अमीरुल मुजाहिदीन बनकर आते हैं। और इमाम फजल हक खैर आबादी ने वो अजीम फतवा दिया जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पाकिस्तान अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी इमाम की याद में, उसी अजीम इमाम की याद में हम और आप यहाँ पर जमा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताज़ुल करीम शेखुल हदीस व तफसीर जहबिजुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवीद खान न्याजी दामत फ़ुयूज़ुहुम हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इमाम फजल हक खैर आबादी पर हमने सोचा, मैंने मौलाना गुलाम मुज्तबा साहब से भी राब्ता किया, मुशावरत हुई, हमारी इस मस्जिद में भी मुशावरत हुई। हमने ये सोचा कि इमाम फजल हक खैर आबादी पर सबसे ज़्यादा कराची के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन गुफ्तगू कौन कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बान पर हमारे उस्ताद का नाम याद आया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपकी नारों की गूंज में अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर जहबिजुल उलमा जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवीद खान दामत फ़ुयूज़ुहुम को मैं दावत दूंगा, बल्कि आपसे अर्ज करूंगा कि आप मवाइज़े हसना से हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएं, नारे लगाकर ताजदारे खत्मे नबुव्वत ये बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तकबीर नारे तकबीर। तकबीर का नारा जानदार होना चाहिए और इसी नारे की बरकत थी कि पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी नारे की वजह से मुसलमान जिंदा होंगे। सहाबा का नारा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोर से नारे तकबीर, नारे तकबीर। इसी नारे ने खैबर को उखाड़ा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारे रिसालत था जो जंगे यमामा में चला, नारे रिसालत। और जो चाहता है कि जंगे यमामा के सहाबा का फैजान ले वो नारे रिसालत लगाए। नारे रिसालत। अभी तक जिनकी आवाज नहीं आई ना तो उनसे अर्ज है कि आवाज को निकालें। आप बैठ जाएं, माइक लगा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल, फैज़ाने लब्बैक या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फैज़े औलिया जारी रहेगा, फैज़े औलिया जारी रहेगा,
فیض فضل حق خیر آبادی جاری رہے گا، فیض احمد رضا جاری رہے گا، فیض علماء جاری رہے گا، فیض صالحین جاری رہے گا۔ چلیے اللہ الحمدللہ فی الارض والسماء قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمت یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ، آپ کا ایک قصیدہ ہے، ویسے تو بہت سارا کلام آپ نے لکھا ہے، یہ آپ کا دیوان ہے میرے سامنے، یہ بھی میں نے اتفاقاً ہی ایسے کھولا تھا، لایا اس نیت سے تھا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کی زیارت کرا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی صفحہ کھولا تھا، جو صفحہ نکلا سامنے تو وہی میں نے مولانا غلام مصطفیٰ کو پکڑا دیا کہ آپ یہ شعر پڑھیں ان کا۔ تو وہی حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو خراج عقیدت علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، اسی کے چند اشعار ان کی طرف سے بھی حضور کی بارگاہ میں اور ہماری طرف سے بھی حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت۔ احاط قلبی بلاء لیس منہ لہو سوا حنانی رسول اللہ من واقی مشفع شافع ماح شفاعتہ تمحو کبائر فجار و فساقی غوث العصاتی فقأک العناتی و مطعام العفاتی کثیر العفو من فاکی طریقت الخلق طلاء الطرائق من حدد طریق و افا رسم تراکی خیر الخلائق محمود الخلائق فتاح المغالق فتاح باحقاقی تلک الیدین طلیق الوجہ منا علی اسرا و حسرا باطلاقی و اطلاقی افا النفاق و آفا بالنفاقی و بک انفاقی اقنا و اغنا اہل انفاقی کتابہ موجز باقن یدوم وما لغیرہ من نبی موجز باقی آیت مساکیا ادنان بلاغتہ وَأَخْرَسَتْ كُلَّ مِنْتِكٍ وَمِسْلَاكِ محمد سید الابرار احمدهم فی حسن خلق وفی تہذیب اخلاقی یا ہادی الخلق ادرکنی وخذ بیدی فقد تورعت فی غی وایحاقی ادرک وخذ بیدی وارحم علی فقد ارلقت فی شفری تغوی ای ازلاقی علیک منا تحیات مبارکہ زکیت ما شدا ساکن علی ساقی۔ یہ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کا یہ کتاب ہے، دیوان العلامہ فضل الحق الخیر آبادی۔ یہ حضرت کا دیوان ہے، اس میں حضرت کا جو مجموعہ کلام ہے عربی میں، چونکہ عربی میں آپ کلام لکھا کرتے تھے، وہ اس میں جمع کیا گیا ہے۔ مکمل نہیں ہے، جتنے دستیاب ہو سکے اشعار، تقریباً 3370 اشعار ہیں اس میں، 3370۔ ویسے کتابوں میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ نے 4000 سے زیادہ اشعار کہے تھے،
लेकिन मुख्तलिफ नुस्खों और मखतूतात और कलमी नुस्खों को लेकर किताब के मुरत्तिब को डॉक्टर सलमा सुहूल हैं, खातून हैं लाहौर की, उन्होंने मुरत्तब किया है मुख्तलिफ नुस्खे लेकर। तो जो अशार दस्तयाब हुए सारे वो कुल हैं 3370, 3370 यानी 3370 अशार जो दस्तयाब हुए वो इसमें मौजूद हैं। ये हज़रत का दीवान है और सारा ही सुभान अल्लाह, क्या कहने। एक मरतबा दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। ज़ीनत बज़्म मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम, हाज़िरीन व नाज़िरीन, दोस्तों, भाइयों, बेटों, अल्लाह ताला का बेहद वद करम और फज़ल है कि उसने हम सबको जमा होकर अपने एक प्यारे वली, दीन के अजीम खादिम, बतले हुर्रियत, मुजाहिदे जंग आज़ादी, इमामुल मनातिका, जामे माकूलो मनकूल, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी राहिमहुल्लाह का ज़िक्र खैर करने और सुनने की सआदत अता फरमाई। अल्लाह वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की सब की शान क्या कहने, हर एक का अपना एक रंग है। वो फारसी में कहते हैं ना, हर गुले रा रंगो बुए दीगरस्त, हर फूल का अपना एक रंग है और अपनी एक खुशबू है। तो अल्लाह वाले जितने भी हैं इस दीन मतीन के जो खुद्दाम हैं, जिन्होंने इस दीन मतीन की मुख्तलिफ ज़ावियों से खिदमत की है, उनमें हर एक का अपना एक रंग है, हर एक की अपनी एक खुशबू है। तो हमें सबका ही जिक्र करना चाहिए। मैं तो खैर इस सोच के हक़ में नहीं हूँ कि हम किसी एक मखसूस बुज़ुर्ग या मखसूस शख्सियत ही का जिक्र खैर करते रहें और दीगर के जिक्र को नज़रअंदाज करें। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। सारे अल्लाह वाले जितने भी हैं वो सुभान अल्लाह, हर एक की शान क्या कहने, और हर एक का अपना एक फैज़ है, हमें सबसे लेना चाहिए। ये गुल है, ये हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चमनिस्तान है, गुलिस्तान है। तो इसके जितने फूल हैं ये सारे फूल जो है ये बाग़े मोहम्मदी के फूल हैं। तो हम हर फूल से अर्क कशीद करें, हर एक से फैज़ लें। क्या वो शेख सादी ने कहा, तमत्तो से हर गोशा याफ्तम से हर खिरमने खोशा याफ्तम, मैंने हर गोशे से फ़ायदा उठाया है और हर खिरमन से खोशा चीनी की है। जब हर खिरमन से जब खोशा चीनी होती है और हर गोशे से बंदा फ़ायदा उठाता है तो फिर जामे बन जाता है। ये जितने बुज़ुर्ग हमें नज़र आते हैं कि जो जामे होते हैं उलूम व फ़नून के, या इल्म फ़ज़ल, इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन के जामे हों, या फ़ुरू व उसूल के जामे हों, जिनके अंदर भी हमें जामियत किसी भी सतह पर नज़र आती है, तनव्वुर नज़र आता है, डाइवर्सिटी नज़र आती है, उसके असबाब में से एक सबब ये भी होता है कि वो मुख्तलिफ मशाइख से, मुख्तलिफ अकाबिर से बिला इम्तियाज़ कस्ब फैज़ करते हैं। और ये जो कस्ब फैज़ करना है, सबसे अलग अलग, जब बंदा जमा, शहद की मक्खी है ना, वो कैसे शहद बनाती है, इस फूल से लिया, थोड़ा उस फूल से लिया, थोड़ा उस फूल से लिया, सारे फूलों से जब वो चुनती है तो वो क्या बनता है, शहद। तो ऐसी जितने भी बाग़े रिसालत के फूल हैं, अल्लाह और रसूल के जितने प्यारे हैं, वो सारे सारे हमारे सर के ताज हैं, वो सारे अल रास व लाइन हैं। तो चाहे वो सलासिल की बात हो, चाहे वो मकातिब फ़िक्र की बात हो, मकातिब फ़िक्र से मुराद फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र की बात कर रहा हूँ, हनफी हों, शाफ़ी हों, मालिकी हों, हम्बली हों, सलासिल में आए तो कादरी हों, नक्शबंदी हों, चिश्ती हों, सुहरवर्दी हों, शाज़ली हों, रिफ़ाई हों, वैसी हों, सारे चूँकि वहाँ के फूल हैं। बाकी ठीक है, कल्बी मिलान अपना अपना होता है हर एक का, किसी का कल्बी मिलान किसी की तरफ ज़्यादा है, किसी का किसी की तरफ ज़्यादा है, उसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि हम कसदन नज़रअंदाज करें।
कसदन सिर्फ एक ही को प्रोमोट करते रहें और बकिया को नजरअंदाज करते रहें। हमारा दीन शख्सियत परस्ती का दीन नहीं है, हम खुदा परस्त हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के जितने प्यारे हैं हम उन सबको मानते हैं और सबको हस्बे मर्तबा मानते हैं। जिसका जितना मर्तबा है ना उससे बढ़ाते हैं ना उससे घटाते हैं। तो हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए एतदाल वाली, और फ़र्क मरातिब मलहूज रखना चाहिए। गर फ़र्क मरातिब न कुनी जिंदगी। और वैसे भी ये इन बुजुर्गों का हम पर हक है कि जिस बुजुर्ग ने इस दीन मतीन की खिदमत की है उस बुजुर्ग का ये हम पर हक है कि उसने इस दीन की यानी हमारे दीन की खिदमत की है। तो हम उसकी उस खिदमत को एक्नॉलेज करें, उसको कंसिडर करें, उसको तस्लीम करें और उसे खराज तहसीन पेश करें और उन्हें ईसाले सवाब करें और उनकी तालीमात से रोशनी हासिल करें। ये जिस जिस बुजुर्ग ने खिदमत की है उसका हम पर हक है। तो इसीलिए हमें सारे बुजुर्गान दीन को मानना चाहिए और सबका जिक्र खैर जो है वो कुशादा कल्बी के साथ करना चाहिए, खुले दिल के साथ करना चाहिए। जिस बुजुर्ग का हम जिक्र करें जो उसके हकीकी कमालात हैं हम वो बयान करें। हाँ, गुलू ना हो, मुबालगा आराई ना हो, आप झूठ ना बोलें, गलत बात ना करें, लेकिन जो है बुजुर्ग तो बुजुर्ग होता है, अल्लाह वाला है, तो अल्लाह वाले के अपने जो औसाफ़ो कमालात हैं वो आप बयान करें हर एक के अंदर। सुभान अल्लाह, ये दीन अजीम दीन, क़यामत तक रहने वाला, इस दीन के जितने खुद्दाम हैं वो ऐसे हैं कि जिसकी के आप हालात पढ़ेंगे ना, बायोग्राफी पढ़ेंगे किसी भी बुजुर्ग की, अगर आप गैर जानेदार होकर पढ़ेंगे तो आपको बस ऐसे लगेगा कि ये बुजुर्ग अपने आप में एक जहान है और आप कहेंगे बस यही बुजुर्ग सब कुछ है। हर एक के अंदर आपको ये शान नजर आएगी बुजुर्गान दीन के अंदर, बिलखुसूस अकाबिर अजिल्ला उलमा फज़ला के अंदर। क्योंकि ये बड़े लोग थे, इन पे अल्लाह की बड़ी इनायत थी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का बड़ा करम था। तो अल्लाह रसूल के फजलो करम से ही फजल हक बने ना वो प्रोफेसर यूसुफ सलीम। तो इसीलिए इलामा फजल खैराबादी का जिक्र भी हमें उस तरह करना चाहिए जिस तरह करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ उस तरह होता नहीं है। हालांकि अल्लामा फजल खैराबादी रहिमहुल्लाह ये वो हस्ती हैं। पहले मैं यूसुफ सलीम चिश्ती का जुमला दोहरा दूं जो मैं कह रहा था, मेरे ज़हन में आया, उसके बाद इस बात की तरफ आता हूँ। प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती एक मशहूर राइटर गुजरे हैं। यूसुफ सलीम चिश्ती ने एक बात लिखी है अपनी किताब में, वो कहते हैं जब तक फजल हक शामिल ना हो इंसान मौलाना फजल हक के मर्तबे से आगाह नहीं हो सकता। यानी कितनी बड़ी बात की। अल्लामा फजल खैराबादी का नाम है फजल हक, हक का फजल। तो कह रहे हैं ये इतने बड़े आदमी थे कि अगर कोई इनका मकाम मर्तबा समझना चाहे तो बगैर फजल हक के फजल के बगैर, अल्लाह के फजल के बगैर तो आदमी इनका मकाम मर्तबा भी नहीं समझ सकता। ये इतने बड़े आदमी थे कि इनका मकाम मर्तबा समझने के लिए भी फजल हक शामिल हाल होना जरूरी है। ऐसी हस्ती। और क्या वो जाफर थानीसरी ने भी लिखा ना कि इल्म मंतिक के पुतले और अफलातूनो बुकरातो सुकरात की गलतियों की तस्हीह करने वाले थे। ये उलमा जानते हैं, इल्म वाले जानते हैं कि अफलातून का मकाम क्या था, बुकरात का मकाम क्या था, सुकरात का मकाम क्या था, और ये उनके गलतियों की तस्हीह करने वाले इनको कहा जा रहा है। मंतिक के मुअल्लिम राबे कहलाते हैं। मंतिक के मुअल्लिम में जो 3 मुअल्लिम है वो तो मशहूर है। मुअल्लिम अव्वल जो है वो अरिस्तु, मुअल्लिम इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल, मुअल्लिम सानी फाराबी, मुअल्लिम सालिस अबू अली सीना। तो हमारे यहाँ ये बात मशहूर है और बिल्कुल सही मशहूर है। जिन्होंने हजरत को पढ़ा है वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि मुअल्लिम राबे जो है वो अल्लामा फजल हक खैराबादी रहिमहुल्लाह। सैयद अहमद खान अलीगढ़ी, जिन्हें हमारे यहाँ उर्फ आम में सर सैयद कहा जाता है, तो सैयद अहमद खान की किताब है आसारुस सनादीद।
तज़किरा अहले दिल्ली के नाम से मशहूर है, असल नाम है उसका आसारुस सनादीद। उसमें जहाँ अल्लामा फजल हक खैराबादी का जिक्र किया है तो सैयद अहमद खान ने उसमें लिखा है, उलमाए असर बल फुज़लाए दहर को क्या ताकत कि इस सर गुरोहे अहले कमाल के हुजूर बिसाते मुनाजरा आरास्ता कर सकें। ये ट्रिब्यूट पेश कर रहा सैयद अहमद खान अलीगढ़ी, जो इस वक्त असरी तालीम के लोगों के यहाँ उसकी हैसियत जो है वो ऐसी है जैसे मुहावरतन लोग कहते हैं ना कि फलां फन का बाबा आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो अव्वलुल बशर हैं, लेकिन जब किसी फन में किसी की अजमत बयान करनी हो तो मुहावरतन लोग कहते हैं कि जनाब ये फलां फन का बाबा आदम है, यानी बानी है, मुअस्सिस है। तो हमारे यहाँ असरी उलूम वाले बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर जदीद तालीम का मुअस्सिस और बानी सैयद अहमद खान को करार देते हैं, सारा क्रेडिट उनको देते हैं। तो ये सैयद अहमद खान ऐसे आदमी के ये अल्फाज हजरत के लिए कि वो इनको क्या कह रहे हैं, सर गुरोहे अहले कमाल के गुरोह के सरदार। और कहते हैं उलमाए असर, सारे जमाने के उलमा बल्कि जमाने के तमाम फुज़ला इकट्ठे हो जाएं तो इतनी ताकत नहीं रखते कि इनके सामने मुनाजरा कर सकें, डिबेट कर सकें। और कब मंतिक की और मंतिक व हिकमत की बिना तो गोया इन्हीं की फिक्र आली ने डाली है। मंतिक व हिकमत जो फन है इसकी बिना बुनियाद तो अगर कोई इनको देख ले तो कहेगा भाई वो तो इन्होंने ही डाली है, ये इतने बाकमाल है। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी को ट्रिब्यूट इस तरह पेश किया है इन बड़े बड़े लोगों ने। और ये क्यों पेश किया है उसकी वजह है कि वाकई वो इतने बड़े आलिम थे। और जिस वजह से मैंने भी शुरू में कहा ना कि जिस तरह उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे यहाँ पेश नहीं किया जाता। फतवा बेशक फतवा जिहाद भी उनका एक नुमाया कारनामा है, लेकिन अल्लामा फजल हक खैराबादी की ज़िंदगी सिर्फ फतवा जिहाद से शुरू होकर फतवा जिहाद पर ख़त्म नहीं होती। अल्लामा फजल हक खैराबादी वो वाकई फजल हक हैं। हमारे इस बड़े सगीर पाको हिंद में जितने भी मदारिस इस्लामिया अरबिया हैं उनमें शायद जो उनके ज़ेरे बारे एहसान ना हो। आप देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में मलिकुल मुदर्रिसीन कहा जाता है अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी साहिब रहमहुल्लाह को। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े मदारिस हैं वहाँ उनके बराह रास्त शागिर्द या बिल वास्ता शागिर्द मुदर्रिस मौजूद हैं। मुदर्रिसीन की एक बड़ी खेप उन्होंने तैयार की अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी साहब रहमहुल्लाह ने, खुद इमामुल मनातिक। अल्लामा बंदियालवी साहिब रहमहुल्लाह शागिर्द रशीद हैं अल्लामा यार मोहम्मद बंदियालवी साहिब रहमहुल्लाह की। और अल्लामा यार मोहम्मद बंदियालवी साहिब रहमहुल्लाह शागिर्द रशीद हैं उस्ताजुल असातिज़ा अल्लामा हिदायतुल्लाह जौनपुरी मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की। और अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी भी कहते हैं, जौनपुरी भी कहते हैं, दोनों जगहों से ताल्लुक़ है। तो वो शागिर्द रशीद हैं बराह रास्त अल्लामा फजल हक खैराबादी की। तो सिलसिला कहाँ पहुँचा? अल्लामा फजल हक खैराबादी तक। ये तो मैंने पाकिस्तान की बात की ना। फिर आप देखें हमारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान बरसीर पाक में हमारा पड़ोसी मुल्क ले लें इंडिया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के शागिर्द रशीद और खलीफा सदर शरिया बदर तरीका अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमहुल्लाह साहिब बहार शरीयत। अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमहुल्लाह शागिर्द रशीद हैं अल्लामा हिदायतुल्लाह जौनपुरी रहमहुल्लाह के। यानी अल्लामा या अता बंदियालवी साहब के जो उस्ताद थे अल्लामा या बंदियालवी वो शागिर्द अल्लामा हिदायतुल्लाह साहब के। सदर शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमहुल्लाह भी शागिर्द हैं अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी रहमहुल्लाह के। अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी शागिर्द हैं किसके? अल्लामा फजल हक खैराबादी के। तो अल्लामा अमजद अली आला हजरत के खुलफा में सबसे ज़्यादा मुदर्रिसीन जिस बंदे ने तैयार किए रिजाल साजी की, जो वाकई मंझे हुए बाग कमाल मुदर्रिस थे और आगे उनके शागिर्दों में बड़े बड़े मुदर्रिस नजर आते हैं, वो अल्लामा अमजद अली आज़मी हैं सदर शरिया। और सदर शरिया खोशा चीन कहाँ के हैं? अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी के।
इसी तरह खलीफा आला हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी राहिमहुल्लाह, वो शागिर्द रशीद हैं किसके? अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी राहिमहुल्लाह के। अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी शागिर्द हैं अल्लामा फजल खैराबादी के। तो अल्लामा फजल खैराबादी के तो शागिर्द वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन उनके 4 शागिर्दों को अनासिर अरबा कहा जाता है। अनासिर अरबा समझते हैं ना, जैसे कहते हैं पानी, हवा, मिट्टी, इंसान, इन 4 अनासिर से कदीम नजरिया ये था फलासिफा का। आजकल तो खैर अनासिर बहुत सारे, जदीद साइंस तो बहुत सारे अनासिर मानती है, लेकिन कदीम जो फलासिफा का नजरिया था वो ये 4 अनासिर का था। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना, कि ये अज्जा एक मखसूस तनासुब से मरबूत होते हैं तो बंदा जिंदा होता है, और अगर ये इम्बैलेंस हो जाए मौत हो जाती। तो बहरहाल उस कदीम टर्म जो है, पुरानी इस्तिलाह है अनासिर अरबा। तो अल्लामा फजल खैराबादी के शागिर्द तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं, क्योंकि आपने तकरीबन 50 साल दरस व तदरीस फरमाई है। 50 साल, तो सैकड़ों आपके शागिर्द हैं, लेकिन उनमें 4 शागिर्द सबसे नुमायां थे, जिसकी वजह से बाकायदा इस्तिलाह वज़ा कर दी उलमा ने अनासिर अरबा, कि अल्लामा फजल खैराबादी के अनासिर अरबा तलामेज़ा। तो वो 4 कौन कौन से शुमार होते हैं? एक तो यही अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी राहिमहुल्लाह उस्तादुल असातिज़ा। दूसरे ताजुल फुहूल अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी राहिमहुल्लाह। तीसरे शुमार होते हैं अल्लामा फैजुल हसन, अल्लामा फैजुल हसन सहारनपुरी राहिमहुल्लाह। चौथे शुमार होते हैं हजरत के अपने ही बेटे खलफुर रशीद अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी राहिमहुल्लाह शम्सुल उलमा। इन 4 को कहा जाता है अनासिर अरबा। तो अब बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर आपको अक्सर बड़े मुदर्रिस इन्हीं 4 के खोशाचीन नजर आएंगे। अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती राहिमहुल्लाह, वो भी आला हजरत के दोस्त थे। अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती राहिमहुल्लाह भी अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी के शागिर्द हैं। तो यानी बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर मदारे से दीनिया, इस्लामिया, अरबिया से जुड़ा कोई शख्स अल्लामा फजल हक खैराबादी राहिमहुल्लाह के एहसान से मुस्तगनी नहीं है। तो ऐसी सूरत में उन्हें किस तरह खराज तहसीन पेश करना चाहिए और कितना पेश करना चाहिए, ये मेरे ख्याल में बयान करने की हाजत नहीं, कि हम में से हर आदमी पे उनका एहसान है। अवाम पे एहसान है उलमा का, और उलमा पे एहसान है किसका? ये उस्तादुल असातिज़ा अल्लामा फजल हक खैराबादी राहिमहुल्लाह का। तो अल्लामा फजल खैराबादी वो फतवा जिहाद भी है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो उनकी ये है, जो उनकी जिंदगी का सबसे नुमायां कारनामा है, कि जो उनसे फैज जारी हुआ है मदारिस के अंदर, जो उन्होंने खेत तैयार की, जो रिजाल साजी की है। सदका जारिया होता है ना, किसी एक को हिदायत मिलना सुर्ख ऊंट मिलने से बेहतर करार दिया गया ना। एक आदमी को हम कोई हिदायत की बात बता दें, वो हमसे हासिल कर ले और उस पर अमल करना शुरू कर दे, वो हमारे लिए सदका जारिया है। तो जहां एक हस्ती ने इतनी बड़ी तादाद में उलमा, बल्कि उस्ताजुल उलमा तैयार किए, ऐसे लोग तैयार किए कि जिनमें से हर एक खुद उस्ताजुल उलमा सिर्फ नहीं, उस्ताजुल असातिज़ा की हैसियत रखता हो, कोई जो उस्तादों का उस्ताद हो। तो उनके लिए कितना बड़ा सदका जारिया है, और उनका जिक्र हमें किस तरह करना चाहिए, हमें इस पे गौर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि उनका ये हम पर हक, वैसे तो मजमूई तौर पर सब पर ये हक है कि जो भी वाबस्तगाने दीन हैं, अहले मजहब हैं बड़े सगीर पाक व हिंद के, उन पर उनका हक है कि जिक्र करें। लेकिन वो लोग, मुझ समेत वो तमाम लोग के जो दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं, जो मदारे से वाबस्ता हैं, उन पे तो उनका बहुत ही बड़ा हक है कि उनके उस हक से हम ओहदा बरा नहीं हो सकते जब तक हम सही मानों में उनकी फिक्र को फरोग ना दें और उनका जिक्र खैर ना करें। तो इसलिए अल्लामा फजल खैराबादी का हमें जिक्र खैर करना भी चाहिए, और अवाम में भी शऊरी बेदारी की लहर पैदा करनी चाहिए। तो इमाम फजल खैराबादी राहिमहुल्लाह का एक मामला तो ये सब
विलादत हजरत की हुई है 1272 सने हिजरिया में। 1200, ये सना इसलिए दोहरा रहा हूं कि आजकल आप लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या जितनी शख्सियात होती हैं उनके सनीने विलादत भी आपको याद होते हैं, सना विसाल भी याद होते हैं। तो जो आपके हमारे असली हीरो हैं, जो हमारी शख्सियात हैं, जो असल शख्सियात हैं, उनका सना विलादत और सना विसाल हमें याद क्यों नहीं है, होना चाहिए। तो हजरत का सना विलादत क्या है? 1212 सना हिजरिया, और सना विसाल क्या है? 1278 सना हिजरिया। सना विलादत क्या है? 1212 सना हिजरिया, और सना विसाल 1278 सना हिजरिया। ये हजरत का सना विलादत और ये सना विसाल एक बार और 3 बार हो जाए। सना विलादत 1272 नहीं है, 1212 सना हिजरिया, और सना विसाल 78 सना हिजरिया। उलमा तो माशाअल्लाह उलमा है, मैं अवाम से मुखातिब हूँ, उनसे ही दोहरा रहा हूँ। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ने जो जिन असातिज़ा से कस्बे फैज़ किया है, तो सबसे नुमायां उनमें आपके अपने वालिद माजिद सदरुस्सुदूर काजी भी थे, मुफ्ती भी थे, अल्लामा फजल इमाम खैराबादी रहमतुल्लाह। अल्लामा फजल इमाम खैराबादी रहमतुल्लाह, जिनकी किताब मिरकात मंतिक की बुनियादी किताब शुमार होती है, तमाम ही मदारिस में बरसीर पाक व हिंद में मुतदावल है, दाखिल दर्स है। अल्लामा फजल इमाम खैराबादी के अलावा दूसरा जो उन्होंने कस्बे फैज़ किया है बिलखुसूस हदीस के बाब में, वो उन्होंने किया है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह के शहजादे शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह से। बरसीर पाक व हिंद में सबसे पहला उर्दू तर्जमा कुरान जिनकी तरफ मंसूब है वो हैं शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह के साहिबजादे। तो शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी से आपने हदीस का इल्म हासिल किया। इसी तरह दूसरे साहिबजादे शाह वलीउल्लाह के शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, उनसे भी आपने कस्बे फैज़ किया है। कई कुतुब तस्करा में इस बात की भी तस्रीह मौजूद है। कितने उस्ताद हो गए? 3। चौथे उस्ताद आपके सिलसिला तसव्वुफ हाफिज सैयद मोहम्मद अली, हाफिज सैयद मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह। ये हजरत कौन थे? आप में से जो लोग थोड़ा सा भी सूफिया के सिलसिले से शगफ रखते हों, बिलखुसूस सिलसिला आलिया चिश्तिया का पता हो, तो आप जानते हैं हमारे बरसीर पाक व हिंद की एक बहुत बड़ी खानका तौसा शरीफ, हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह, जिन्हें हमारे यहाँ पीर पठान कहा जाता है पंजाब में। तो हजरत पीर पठान के खलीफा थे हाफिज सैयद मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ने पीर पठान के खलीफा हाफिज सैयद मोहम्मद अली खैराबादी से इल्म हासिल किया है। किसका? तसव्वुफ का। बाकायदा शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह, उनकी किताब फुसूसुल हिकम, फुसूसुल हिकम का आपने बाकायदा उनसे दर्स लिया है, हाफिज सैयद मोहम्मद अली खैराबादी से। और हाफिज सैयद मोहम्मद अली खैराबादी रहमतुल्लाह जब पढ़ाते थे तो बाज़ औक़ात वो हजरत को कहते भी थे, ज़राहे खुश तबई भी आप ले सकते हैं इस बात को, और वैसे भी जो बड़े उस्ताद होते हैं वो बड़े होते हैं, वो तलामज़ा पे शफकत करते ही हैं, तो वो कुछ बातें कहते भी हैं। तो उन्होंने भी जो है वो हजरत को कहते थे, जब बहस होती थी फिर कहते थे कि भाई फ़लसफ़े की मुजावलत के सबब जो है वो तुम्हारे दिमाग में इतनी कुव्वत नहीं कि तुम ये हमारे मानी आलिया का इदराक कर सको। तो हजरत खुद भी अल्लामा फजल खैराबादी, यही वजह है कि हालांकि मंतिक और फ़लसफ़े के आप खुद इतने बड़े इमाम हैं, इसके बावजूद जब सूफिया की बात आती है तो वहाँ पर फिर आप खुद ये कह देते हैं कि ये उन अजीम हस्तियों के मानी है कि इस तक पहुँचने से हमारे मदारिक कासिर हैं। तो ये किस और तौर की बात है, हम इसमें खोद कुरेद में नहीं पढ़ते, लेकिन हम उन पर उनकी बात को तस्लीम करते हैं। तो यानी अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ऐसा मंतकी फ़लसफ़ी जो खुद इतने बड़े हकीम, तो सूफिया साफिया से भी खोशाचीनी की है,
और उनके साथ बतौर तस्लीम व ताईद पेश आते हैं, यानी अकाबिर की, बुजुर्गान दीन की बेहुरमती नहीं करते। और होना भी ऐसा ही चाहिए कि अकाबिर बुजुर्गान दीन जो हैं, जो अकाबिर हैं, अहलुल्लाह हैं, उनकी कोई बात अगर हमें समझ में ना आए तो उनकी उस बात की अच्छी तौजीह तलाश करनी चाहिए, ना कि ये कि हम उन पे ज़बानें तान दराज करना शुरू कर दें और इस तरह की बातें करना शुरू कर दें कि बाबे तशई कोई नहीं। इस तरह के जुमले हमें नहीं बोलने चाहिए। अहलुल्लाह हैं, अहलुल्लाह की ताज़ीम करनी चाहिए। उनकी कोई बात हमें समझ में ना आए तो उसकी अच्छी तौजीह तलाश करनी चाहिए। और आप देखें, इतने बड़े इमाम, उस्तादुल असातिज़ा होकर अगर उन्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो उस पर इतराज करने की बजाय ये कह रहे हैं कि हमारे मदारिक उनके मदारे तक पहुंचने से कासिर है। तो हमारे बुजुर्ग अहले अदब थे, तो हम उन अहले अदब बुजुर्गों के खोशाचीन हैं। हमें भी अपने बुजुर्गों के साथ, अहलुल्लाह के साथ अदब से ही पेश आना चाहिए। और अदब का तकादा यही है जो मैंने अर्ज किया। हालांकि आप हकीम इतने बड़े हैं कि आपके अपने साहिबजादे अल्लामा अब्दुल्ला खैराबादी, जिनकी मैंने अभी बात की, उनसे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि हज़रत दुनिया में कितने हकीम हैं, दुनिया में कितने हकीम यानी कितने फ़लसफ़ी हैं। हकीम माना दानिश्वर, वो तिब वाला हकीम नहीं, दानिश्वर के माना इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है। दुनिया में कितने इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर? तो उन्होंने कहा 3.5। कितने? 3.5 का। एक जो है वो अरिस्टोटल, दूसरा फाराबी, तीसरा जो है वो वालिद मरहूम यानी अल्लामा फजल खैराबादी, और आधा मैं खुद अल्लामा अब्दुल्ला खैराबादी। यानी वो खुद भी आला पाए के मंतकी फलसफी थे, लेकिन उन्होंने एक तो तवाज़ो से काम लिया कि भाई मैंने इतने बड़ों का नाम लिया है तब उनके सामने अपने आप को उनके बराबर ना रखूं, तो उन्होंने कहा आधा। लेकिन ये उन्होंने इस वजह से नहीं कहा कि वो अल्लामा फजल खैराबादी उनके वालिद हैं, बल्कि हकीकतन बात ऐसी है कि ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा बल्कि दीगर बड़े बड़े उस वक्त के जो अहले खिरद थे, अहले हिकमत थे, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि अल्लामा फजल खैराबादी वाकई बहुत बड़े हकीम। तो और अल्लामा फजल खैराबादी रहमहुल्लाह वो खुद तो आला दर्जे के हकीम हैं, उनके घर की जो मस्तूरात हैं वो भी ऐसी थी। घर की मस्तूरात का मामला भी जो है ना बहुत आला पाए का। अल्लामा बरकत अहमद टोंकी रहमहुल्लाह ने नकल किया है ना, उन्होंने जहां अपना कि मैंने जब सबक पढ़ लिया अल्लामा अब्दुल्ला खैराबादी से तो मेरे दिल में अब आया, घर वाले भी बुला रहे थे, मैंने कहा पढ़ लिया, फारिग तो मैं हो गया हूँ, जो दर्स है इसको कंप्लीट कर लिया और अब इजाफी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वापस जाना चाहिए। जाने लगे तो अल्लामा अब्दुल्ला खैराबादी की जो ज़ौजा मोहतरमा है उनको पता चला कि भाई जा रहा है बच्चा, तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारी तालीम जो है मुकम्मल हो गई? इन्होंने कहा जी हो गई। कहा कहाँ तक पढ़ लिया? तो उन्होंने कहा मीर जाहिद। अब तो खैर हालात ऐसे हैं कि जो मौजूदा लोग जो हमारे पढ़ने वाले हैं, अब तो मीर जाहिद का नाम भी कई लोग जानते ही नहीं है। मीर जाहिद के हवाशिए सलासा मशहूर हैं। जो पुराने लोग हैं, पुराने उलमा हैं, वो तो जारी बात है उनके दौर में तो दाखिले दरसी वो जानते हैं। और मैंने खुद भी मीर जाहिद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबकन पढ़ी हुई है, हवाशिए सलासा जो है। तो कहा मीर जाहिद, तो इस पर उन्होंने आगे से जवाब में ये कहा कि बेटा कुछ पूछ लूं क्या मैं इसमें से कुछ पूछ लूं? कहा इतनी शुद्ध बुद्ध तो इस घर की मस्तूरात भी रखती हैं। ये उन्होंने जवाब में अल्लामा खैराबादी की ज़ौजा ने कहा। तो अल्लामा बरकत अहमद टोंकी कहते हैं कि ये बात सुनकर मैं इनफियाल से, शर्म से पानी पानी हो गया और मैंने वापस घर जाने का इरादा तर्क कर दिया और दोबारा जो है वो उसको मुकम्मल किया जो पढ़ना था। यानी उनके घर की खवातीन का आलम ये है कि उनके घर की खवातीन भी वो भी तबका हुक्मा में शुमार होती, ऐसा आलम था वो। ऐसे जो है वो ऐसा इंटेलेक्चुअल खानवादा था अल्लामा फजल खैराबादी का, दानिश्वर घराना, खुद भी दानिश्वर, बेटे भी दानिश्वर, बहू भी दानिश्वर, बेटी भी, उनकी बेटी थी जो बड़ी बेटी थी अल्लामा
बीबी सईदुन निसा हिरमा खैराबादी, हिरमा वो शायरी भी करती थी, तखल्लुस है उनका हिरमा, सईदुन निसा उनका नाम था, राहिमहल्लाह। अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी, अल्लामा फजल खैराबादी के साहिबजादे, वो ये बात खुद कहते हैं कि अच्छा हुआ कि बहन सईदुन निसा जो है ये औरत है, मर्द नहीं थी। अगर ये मर्द होती तो हमें कौन पूछता। इल्म फजल ऐसा उनका कि वो कह रहे हैं कि अगर ये मर्द होती तो इल्म फजल इसका ऐसा, हमें कौन पूछता, अच्छा है ये मर्द नहीं हुई, ये औरत हुई। तो उस घर की अल्लामा फजल खैराबादी वो आदमी हैं कि वो खुद तो दानिश्वर हैं ही हैं, उनका पूरा खानवादा जो है, उस घर की औरतें भी दानिश्वर हैं तबका हुक्मा में ऐसे। और यही जिनका मैंने जिक्र किया, बीबी सईदुन निसा हिरमा खैराबादी राहिमहल्लाह, इनकी तज़मीन भी है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत राहिमहुल्लाह के एक कलाम पर। आला हज़रत कलाम लम यअती नज़ीरुका फी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगर आज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। इस पर बीबी साहिबा की एक तज़मीन भी है और मतबू है, छपी हुई है। और एक तीसरी खातून है इसी खानवादे की, उन्होंने तो बाकायदा कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर भी लिखी है, कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी है। तो यानी ये तो सारे का सारा घराना जो है अल्लामा फजल खैराबादी का सारा घराना, वो खुद भी दानिश्वर, उनके घर के मर्द भी दानिश्वर, उनकी घर की खवातीन भी दानिश्वर, उनके शागिर्द भी दानिश्वर, यानी पूरा दानिश्वरों का सिलसिला तो ज़हाब है, चेन ऑफ गोल्ड। अल्लामा फजल खैराबादी राहिमहुल्लाह ऐसी हस्ती हैं। तो क्या समझे मौलाना, तो फतवा जिहाद भी है, लेकिन ये पूरा यहाँ तो दानिश्वरों का सिलसिला है, इल्म दानिश पहले है, उसके बाद फिर आगे ठीक है वो भी है, वो अमल का मैदान भी है। इल्म दानिश के मैदान में भी फिर आप इमाम हैं, और जब अमल के मैदान की बात आई है तो ठीक है, वहाँ भी फिर आप बतले हुर्रियत हैं, वहाँ भी आपने उसको निभा के दिखाया है। तो अल्लामा फजल खैराबादी राहिमहुल्लाह जब पढ़ते थे, जब पढ़ते 13 बरस की उम्र में आप फारिग हुए हैं। कितने बरस की उम्र में? 13 बरस की उम्र में आप उस वक्त राइज जो उलूम व फनून थे उसकी तहसील से फारिग हो गए, फारिग तहसील। फारिग तहसील भी खैर सुभान अल्लाह, इस पे भी एक जुमला कह देता हूँ। आजकल वो हमारे यहाँ फारिग तहसील, वो तलबा ये समझते हैं कि शायद फारिग तहसील का मतलब अब हम फारिग हो गए, हालांकि ये असल में था फारिग लित तहसील, कि आपने दर्स में किताबें पढ़ना सीखा कि अब किताबें पढ़नी कैसे हैं, इल्म हासिल कैसे करना है। अब असल में आपने अपने आप को वक्फ करना है इल्म हासिल करने के लिए। तो आप फारिग आने तहसील नहीं है, हकीकत में फारिग लित तहसील है। लेकिन हमारे यहाँ मामला है उल्टा, तो समझते हैं बस और किताब लपेट के रख देते हैं, तय की किताब ताक में, उसके बाद किताब खोल के नहीं देखनी, किताब खोलनी है। अगर पढ़ाना पड़ गया तो जो पढ़ाना है वही किताब खोलनी है। जब वो किताब भी ऐसे खोलनी है कि सुबह जो सबक पढ़ाना है रात को वही सबक खोल के खुद देख रहे हैं। फिर कभी जो उर्दू शरह उठा रहे हैं, कभी इसकी शरह उठा रहे हैं, कभी उसका लेक्चर सुन रहे हैं। उस्ताद में और शागिर्द में जो वो एक रात का फर्क नहीं होना चाहिए। हालात इसलिए दिगर गो है ना कि आजकल जो है वो मुदर्रिस में और तालिब उल इल्म में एक रात का फर्क है, और वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ तभी इतनी बड़ी जो खेप तैयार हुई और ऐसे ऐसे जो है वो खुद अगले दानिश्वर थे जो अजिल्ला तैयार हुए, तो उनमें फर्क ऐसा नहीं था रात और एक रात का, उनमें बड़ा फर्क था। और शरह की बात आई हमारे यहाँ तो आजकल ये उर्दू शरह जो है वो देखकर आप लोग पढ़ लेते हैं। खैराबाद उलमाए खैराबादी तरीका दर्स में तो शरह पढ़ने की वैसे ही इजाजत नहीं थी। उर्दू शरह तो आप रहने ही दें, अरबी शरह जो छपी होती है किताब के साथ, अरबी हाशिया, उलमाए खैराबाद इसको नहीं पढ़ने देते थे, कहते थे इससे इस्तेदाद पैदा नहीं होती, सलाहियत फौत होती है। ये मेरे मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, बाकी लोगों के सिग्नल कैसे आ रहे हैं? इस्तेदाद सलाहियत फौत हो जाती है इससे। क्यों? कि जब बंदा उसको एक सहारा मिल गया ना,
کہ بھئی اس بات کا مطلب کیا ہے, اچھا اس کا مفہوم کیا ہے, وہ دوسرے کو پڑھنا شروع ہو گیا تو خود اپنا دماغ نہیں استعمال کرے گا. اور حقیقت بھی ایسے ہی. تو وہ کہتے تھے شرح نہیں دیکھو, حاشیہ نہیں دیکھو, اپنا دماغ استعمال کرو, براہ راست سمجھو کہ بات کیا کہی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ ان کے دماغ زرخیز تھے. جو چیز آپ جتنی استعمال کریں گے اتنا ہی وہ نکھرے گی. اور بالخصوص دماغ کے بارے میں تو ایسا ہی ہے, جتنا آپ نے دماغ استعمال کرنا ہے اتنا ہی آپ کے جوہر نکھر کر سامنے آئیں گے. تو جتنے سہارے ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے, اتنا ہی آپ کی جو فکری سطح ہے وہ پست ہوتی چلی جائے گی. تو آج کل سہاروں نے کر دیا کمزور کہ عربی اور شروع اور حواشی تو اپنی جگہ پر, اب تو اردو شرح اور اردو حاشیے لوگوں نے پکڑ لیا اور تنزل آ گیا. نہ پہلے تو علماء خیر آباد ناراض ہو جاتے تھے اگر پڑھنے کے دوران پتہ چل جاتا کہ طالب علم جو ہے وہ یہ حاشیہ پڑھ کر آیا نیچے والا, تو سخت سزا بھی دیتے تھے, بھگا بھی دیا کرتے تھے. یہ علامہ عبداللہ خیر آبادی صاحب جن کا ذکر کر رہا تھا, علامہ فضل خیر آبادی کے صاحبزادے, انہوں نے یہ علامہ برکات احمد صاحب کو بھگا دیا تھا. ایک دفعہ ایسے سبق پڑھا رہے تھے, پتہ چل گیا, انہوں نے جس طرح سوال پوچھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ حاشیے سے پڑھ کے پوچھ رہا ہے. تو مارا جو سزا دی وہ تو دی, اس کے بعد بولا دفع ہو جاؤ, بھگا دیا. انہوں نے بڑی معافی تلافی کی لی. اور وہ بھی خیر شاگرد بھی ایسے تھے, وہ بھی خود پہنچے ہوئے تھے, تو ان کا بھی عقیدت کا رشتہ ایسا تھا. وہ واقعی استاد بھی ایسے ہی تھے اور شاگرد بھی ایسے ہی تھے. تو 2 سال تک وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح استاد راضی ہو جائیں, استاد کس طرح راضی ہو جائیں. 2 سال کوشش کی انہوں نے, لیکن وہ راضی نہیں ہوئے. 2 سال بعد جا کر انہوں نے کسی اور ایسے آدمی سے سفارش کروائی کہ جن کی بات وہ ٹالتے نہیں تھے, تو پھر انہوں نے ان کو دوبارہ حلقہ درس میں قبول کیا. تو وہ ایسے استاد تھے اور ایسے شاگرد تھے. تو اسی لیے پھر ان کے درس میں بھی برکت تھی, ان کی تصنیف و تالیف میں بھی برکت تھی, ان کے کلام میں بھی برکت تھی. پھر وہ کلام بھی فرماتے تھے تو از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے جو بات نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, قدسی و لسل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. اقبال نے کہا تھا نا, تو حقیقت ایسی. تو ان کا تعلق جو ہے وہ اس طرح کا تھا. تو علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ تو ایسے تھے. بہرحال تو میں ذکر کر رہا تھا جب آپ پڑھتے تھے تو پڑھنے کے بعد آپ جب فارغ ہوئے تو 13 برس آپ صحیح معنوں میں فارغ ہوئے, یعنی تحصیل کی, اور اس کے بعد بھی پھر آپ نے حاصل کیا, لیکن جو پڑھا وہ بھی سبحان اللہ کمال پڑھا آپ نے. تو 13 برس کی عمر تھی جب آپ فارغ و تحصیل ہوئے. اب کیا ہوا, علامہ فضل امام خیر آبادی یعنی آپ کے والد ماجد, انہوں نے آپ کو پڑھانے کے لیے مقرر کر دیا. تو کوئی طالب العلم آیا, بڑی عمر کا طالب علم تھا, تو اس کو بھی بھیج دیا ان کے پاس کہ جاؤ فضل حق سے پڑھ. اب بڑی عمر کے تھے, وہ آئے, پڑھنا شروع کیا. انہوں نے سمجھائی کوئی بات, ان کو نہیں سمجھ میں آئی, دوبارہ سمجھائی, 6 بارہ سمجھائی. آخر غصہ آیا کہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا. غصہ آیا تو ان کو برا بھلا کہا, کتاب بند کر دی اور کہا بھاگ جاؤ, تم یہ پڑھ ہی نہیں سکتے. وہ رونے لگ گئے, روتے روتے علامہ فضل امام خیر آبادی کے پاس پہنچ گئے, حضرت کے والد کے پاس, کہ مجھے انہوں نے ایسے ایسے بھگا دیا اور ڈانٹا ہے. اب علامہ فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ, دیکھیں وہ لوگ کیسے تھے. استاد جس کو کامل استاد کہتے ہیں نا, وہ ایسے تھے. استاد بھی کامل تھے, باپ بھی کامل تھے. باپ بھی تھے, استاد بھی, دونوں جہتوں سے تربیت کیسے کی. فوراً آئے, ان کو کہا کہ بلا کے لاؤ اسے. جب علامہ فضل خیر آبادی آئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ابا کے سامنے, آپ کو غصہ آیا. جلال میں ایک چانٹا اتنے زور سے مارا کہ جو دستار فضیلت ہے نا, یہ دستار امامہ جو, وہ جا کے گرا دور. اتنے زور سے چانٹا مارا اور فرمایا ساری عمر بسم اللہ کے گنبد میں رہا, ناز و نعم میں پرورش پائی. جس استاد کے پاس بٹھایا اس نے خاطرداری سے کام لیا. مسافرت کرتا, دھکے کھاتا تو طالب علموں کی قدر معلوم ہوتی اور علم کی قدر معلوم ہوتی. تجھے کیا پتا طالب علم کیا ہے, خبردار آئندہ کسی طالب علم کے ساتھ ایسا کیا تو وہ کھڑے رہے. انہوں نے معذرت کی اور پھر اس کے بعد علامہ فضل خیر آبادی سے کبھی کوئی شکایت ایسی موصول نہیں ہوئی. نہیں, یہ کیا تھا کہ چونکہ علامہ فضل امام خیر آبادی خود صدر الصدور تھے نا, امیر کبیر آدمی تھے, قاضی بھی تھے, مفتی بھی تھے. تو عموماً ایسا جیسا ہوتا ہے, صاحبزادے تو صاحبزادے ہوتے ہیں, صاحبزادوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے, لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, لوگ کیسے پروٹوکول دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں.
تو ایسی علامہ فضل خیر آبادی بھی صاحبزادے تھے نا, تو لوگ ان کو عزت دیتے تھے. اساتذہ جن سے پڑھا ہے وہ استاد بھی آپ کو عزت دیتے تھے, پروٹوکول لیتے تھے. تو وہی علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ بھئی تم نے تو ناز و نعم میں پرورش پائی, بسم اللہ کے گنبد میں رہے ہو, جس استاد کے پاس بیٹھے ہو اس نے خاطرداری سے پڑھایا ہے, جس کے پاس بھی بیٹھے ہو, تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تم نے کبھی دھکے کھائے ہوں, سفر اختیار کیا ہو, غربت دیکھی ہو, ذلت دیکھی ہو, تو پتہ چلے کہ دین کیا ہے اور دین کا علم کیا ہے. ہم تو سب یہیں رہ کے سب کچھ کیا. تو پھر علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے بہرحال ابا کی یہ نصیحت جو ہے وہ گرہ سے باندھ لی. اس کے بعد پھر آپ کی جو شفقت ہے وہ آپ کی بھی, آپ کے بچوں کی بھی, آپ کے تلامذہ کی بھی, سلسلہ خیر آباد پورے کی, اساتذہ کی تلامذہ پہ شفقت مثالی. ایک سے ایک واقعے کتب تذکرہ میں لکھے ہوئے. اور حضرت جب پڑھتے تھے تو پڑھنے کے دوران ایک دفعہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس ہے. اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ علامہ فضل خیر آبادی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان جو ہے ان کا باہمی تعلق تھا رشتہ داری کا. 14 واسطوں بعد جا کر علامہ فضل خیر آبادی کے پیچھے 14 پشتوں کے بعد شاہ ولی اللہ کا اور آپ کا نسب مل جاتا ہے, اسی لیے قریبی تعلق تھا. اور 32 واسطوں کے بعد سیدنا فاروق اعظم, فاروقی ہیں نا علامہ فضل خیر آبادی, وہ فتوی جہاد کی بات ہو رہی تھی نا, فاروقی ہیں, رگ فاروقی ہم سکوت نمی کنت, فاروقی خون تھا, فاروقی تھے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس ایک دفعہ یہ طالب علمی کے دوران جب آپ آئے, تو آپ چونکہ بہت عمدہ شاعر بھی تھے علامہ فضل خیر آبادی, آپ کو شوق تھا اشعار کہنے کا بھی. اور یہ بھی دیکھیں ایک پہلو ہے, ورنہ جو منطق میں فلسفے میں مشہور ہوتا ہے نا وہ عقلی منہ شگافیوں سے چونکہ زیادہ کام لیتا ہے, تو لطیف جذبات وغیرہ باقی نہیں رہتے. اور جو لطیف جذبات والا زیادہ ہوتا ہے, جس کا زیادہ معاملہ دل کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کا دماغ والا معاملہ ذرا کمزور ہوتا ہے. لیکن علامہ فضل خیر آبادی جو ہے ان کا ہمیں دل اور دماغ دونوں ہی جوبن پہ نظر آتا ہے کہ منطق اور فلسفے میں بھی وہ امام, اور دل کی بات آتی ہے تو بھی ان کی نظم پڑھیں آپ یا نثر پڑھیں, ادبیت اس سے ٹپکتی ہے, بلاغت اس سے ٹپکتی ہے. ایسا نہیں لگتا کہ آپ کسی خشک فلسفی کی تحریر پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی ادیب ہے, ادب کی ایک چاشنی اس میں آپ کو ملے گی, چاہے وہ آپ کی نثر ہو چاہے آپ کی نظم ہو. اور میں نے آپ کو ابھی دکھائی دیا, زیارت کرائی دی, پورا دیوان آپ کا, یہ صرف عربی کا ہے. عربی میں جو اشعار کا ہے 4000 سے زائد اشعار ہیں, اس میں کتنے ہیں 3370. فارسی میں بھی کلام کا, فارسی میں فرقتی تخلص کرتے تھے. تو قصیدہ ایک دفعہ یہ میں نے ذکر اس پہ کیا, تو بتا رہا تھا کہ انہوں نے قصیدہ کہا. جو مدارس سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, سوا معلقات پڑھتے ہیں. سب سے پہلا معلقہ کس کا؟ امرؤ القیس کا. اشعر شعراء العرب اسے کہا جاتا ہے, عرب کے شاعروں میں سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس. تو امرؤ القیس کے ایک قصیدے کی زمین پر, اسی طرز پر علامہ فضل خیر آبادی نے قصیدہ کہا. یہ ابھی دور کون سا ہے؟ 13 سال میں فارغ ہوئے ہیں, فارغ ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی. یعنی ایسے بالکل جو ہے نوجوانی, ینگ بلڈ, لڑکپن ہے, اس میں امرؤ القیس کی طرز پر قصیدہ کہہ رہے ہیں, اور قصیدہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بیٹھے سنا رہے ہیں, اور والد ماجد علامہ فضل امام خیر آبادی بھی بیٹھے ہیں. ایک لفظ پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ٹوک دیا, کہا کہ یہ لفظ غریب ہے. غریب مانا یہ ہمارا اردو والا غریب نہیں, اردو میں تو غریب مفلس کو کہتے ہیں نا. غریب مانا نامانوس, عربی میں غریب کسے کہتے ہیں؟ نامانوس, قلیل الاستعمال, کوئی لفظ عام استعمال نہ ہوتا ہو. اسی سے جو ہے وہ غریب القرآن کی اصطلاح ہے, غریب الحدیث کی اصطلاح ہے. قرآن کے وہ الفاظ کے جو قلیل الاستعمال ہیں, اس پہ پوری پوری کتابیں ہیں علماء کی. اس طرح غریب الحدیث, حدیث کے وہ الفاظ جو قلیل الاستعمال ہیں, جن کا معنی عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی. تو ایسے ہی ایک لفظ پر شاہ محدث دہلوی نے یہ کہہ کے ٹوک دیا کہ یہ لفظ غریب ہے, یعنی قلیل الاستعمال ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ تھا. لیکن علامہ فضل خیر آبادی نے اسی وقت برجستہ فی البدی ایکسٹیمپور 20 شعر سنا دیے. کتنے؟ 20 شعر سنا دیے متقدمین شعراء عرب کے, کہ جن میں وہ لفظ استعمال ہوا تھا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ غریب نہیں ہے.
गरीब होता तो ये 20 शेर तो मैंने अभी हाथ क्या सुना दिए, इसका मतलब और भी तो 20 सुनाए, अभी आगे और सुनाने लगे थे कि आपके वालिद माजिद अल्लामा फजल इमाम खैराबादी ने जो है वो इशारा किया, फरमाया बस हद अदब, यानी इससे आगे अभी अदब के मुनाफिक बस हद अदब। तो आपने आगे से फौरन अर्ज किया, बोला हुजूर ये कोई हदीस या तफसीर का मसला थोड़ी है कि अदब, ये तो शेर व शायरी है, इसका अदब से क्या ताल्लुक। तो इस पर शाह अब्दुल अजीज मुद्दे देहलवी ने आगे से फरमाया कि हाँ साहबजादे तुम सही कहते हो, मुझी से साहब हुआ, तुम सही कहते हो, मुझी से हुई। अब शाह अब्दुल अजीज मुद्दे देहलवी खुद आला पाए के मुदर्रिस हैं और वो खुद आला पाए के इमाम हैं अपने फन के, वो एक बात पर टोक रहे हैं और इतनी शुमार है आपकी, तो उसी वक्त आपके इल्म का फजलो कमाल का आलम यह है कि आपने उसी वक्त, और वो मजबूर हो गए ये कहने पर कि मुझे साहब हुआ, उन्होंने अपना साहब मान लिया, यानी उन्होंने रुजू किया। तो अल्लामा फजल खैराबादी ऐसे थे। अल्लामा फजल खैराबादी अभी पढ़ते थे ईरान से अहले तशय्यो का एक बड़ा आया, जो लोग कदीम जो बाज माशाल्लाह हजरात हमारे बैठे हैं, अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन साहिब किबला, तो जो पुराने लोग हैं ना उनको पता है, मैं पुराने इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि जो नए लोग हैं इन्होंने तो उन किताबों के नाम भी नहीं सुने, किताबें वो अब तो दाखिले दर्स रही नहीं, इखराज हो गया। अल-उफ़ुक़ुल मुबीन के नाम से फ़लसफ़े की किताब है मशहूर बड़ी, मीर बाकिर दामाद की। तो मीर बाकिर दामाद के ख़ानदान का, साहिब अल-उफ़ुक़ुल मुबीन मीर बाकिर दामाद के ख़ानदान का एक बड़ा मुज्तहिद ईरान का अहले तशय्यो का, वो उसे जब पता चला कि शाह अब्दुल अज़ीज़ मुद्दे देहलवी ने अहले तशय्यो के रद में किताब लिखी है तोहफ़े इस्ना अशरिया के नाम से, असल किताब फ़ारसी में छपी हुई है, उसका उर्दू तर्जुमा भी छपा हुआ है, दस्तयाब है। तो जब उसे पता चला कि इन्होंने रद में किताब लिखी है तो वहाँ से काफ़ी सारी किताबें इकट्ठी करके फ़रीक़ैन की, यानी अहले तशय्यो की भी और अहले सुन्ना की भी, वो आया मुनाजरे के लिए। तो जब वो शाह साहब के यहाँ ठहरा, शाह साहब तो चूँकि बड़े उलमा हमारे जो थे अकाबिर थे वो सारे बड़े लोग थे, वो इख्तिलाफ अपनी जगह पर और वज़ादारी का बहरहाल भरपूर मुजाहरा करते थे, रख रखाव वाले थे। तो उन्होंने उसको ठहराया, लंगर वगैरह खिलाया, फिर भी ठीक है ठहर जाओ तो बात करेंगे कल। शाम को अल्लामा फजल खैराबादी आए तो उन्होंने देखा भाई शाह साहब जो है ज़रा खातिर तवाज़ो कर रहे हैं, भाई मेहमान है वो। तो शाह साहब जब चले गए तो उन्होंने पूछा भाई क्या वो कौन है आप और कहाँ से आए। अब उसने बताया ऐसे ही, उसने बताया तो उसने भी बात में पूछ लिया कि भाई आप क्या करते हो साहबजादे, क्या पढ़ते हो। तो इन्होंने आगे से फरमाया यही शिफा का नाम लिया, अबू अली सीना की किताब शिफा का, इशारात का नाम लिया और यही अल-उफ़ुक़ुल मुबीन का नाम लिया। अब उसने उम्र देखी कि भाई इतना सा बच्चा सा है ये, और ये अल-उफ़ुक़ुल मुबीन और इशारात और शिफा की बात कर रहा है, तो बड़ा हैरान हुआ कि भाई कहाँ समझा। तो उसने कहा सब बताओ कुछ सुनाओ। तो अल्लामा ने एक मकाम की तकरीर की, अल-उफ़ुक़ुल मुबीन के एक मकाम की तकरीर की, और तकरीर करके उस पर किए एतराज़ात मीर बाकिर दामाद पर, अल-उफ़ुक़ुल मुबीन वाले पर, कि भाई ये सही नहीं, उस पर एतराज़ बोछाड़ कर दी। अब वो उसने आगे से कोशिश की जवाब देने की, तो उसके जवाबों में ही आपने उसको ऐसा पछाड़ा साकित लाजवाब। फिर अल्लामा ने क्या किया इसके बाद, उसको कहा अब सुनो, दोबारा तकरीर की और जितने इश्काल वारिद किए थे ना उन सब इश्कालात के खुद ही जवाब दे के इबारत को क्लियर कर दिया। यानी पहले उस तकरीर की इबारत पकड़ी और इबारत पकड़ के उस पर तराजात की बौछाड़ की, वो क्लियर नहीं कर पाया। जब वो आजिज आया तो आपने खुद तकरीर की और खुद अपने ही एतराजात के जवाब दे के इबारत को क्लियर कर दी। जब उसने ये मामला देखा तो वो वापस चला गया बगैर मुनाजरा किए ही, कि भाई जहाँ जिस खानकाह के बच्चों के इल्म का ये आलम है तो खानकाह के शेख का आलम क्या होगा। तो वो शेख खानकाह से बात किए बगैर ही वापस पलट गया। तो ये थे अल्लामा फजल खैराबादी रहमहुल्लाह, ये थे इमामुल मनातिका, ये हकीमुल हुकमा अल्लामा फजल खैराबादी रहमहुल्लाह। तो खैर एक से एक उनकी बात है, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोगों से आपके रवाबित थे, बहादुर शाह जफर से, इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब
उर्दू अदब का मशहूर नाम, आपका करीबी दोस्त। मोमिन खां मोमिन उर्दू अदब का मशहूर नाम, आपका करीबी दोस्त। इमाम बख्श सहबाई आलिम भी हैं, और आलिम होने के साथ इमाम बख्श सहबाई बहुत बड़े शायर भी हैं उर्दू के। तज़किरत शुअरा आपकी मशहूर है। अल्लामा फजल खैराबादी के दोस्त। रात को ये लोग जमा, और मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा दिल्ली राहिमहुल्लाह, वो तो आलिम भी हैं और शायर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और अल्लामा फजल खैराबादी के उस्ताद भाई भी हैं। आपके वालिद माजिद के शागिर्द हैं अल्लामा फजल इमाम खैराबादी के, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा दिल्ली राहिमहुल्लाह। तो और भी खैर बड़े बड़े नाम हैं। तो ये अहले फजलो कमाल जो है ये जमा होते थे रात को, कभी अल्लामा फजल खैराबादी के घर पे, कभी किसी और दोस्त के घर पे, रात को जमा होते थे और बैठ के गपशप होती थी। अब वो जो गपशप होती थी ना, वो गपशप भी इल्मी नौयत की होती थी। कभी कोई शेर पे बात चल गई, कभी कोई फलसफे की बात चल गई, कभी कोई हिकमत की बात चल गई, कभी कोई इल्म माकूल की बात चल गई, कभी इल्म मनकूल की बात चल गई। क्या वो सुभान अल्लाह, मैं कहता हूँ कि आप चश्मे तसव्वुर से देखें वो क्या नज़ारा होगा कि ज़मीन के नीचे जो है वो ऐसे ऐसे फजल कमाल बैठे हों और उनकी आपस में गुफ्तो शुनीद हो रही हो, वो इल्मी वो किस सतह पर होती होगी। तो मिर्ज़ा गालिब का जो दीवान है, दीवान गालिब उर्दू वाला, मिर्ज़ा गालिब की मुश्किल पसंदी मशहूर है, सबको पता है मिर्ज़ा गालिब मुश्किल लिखता है। बल्कि मैं तो बाज़ औक़ात जो है वो लोगों को थोड़ा खुशतबी करता हूँ तो बहुत सी बातें कह देता हूँ। पिछले दिनों भी जो है वो हमारे वहाँ चैनल पे वो एक मौलाना जो है वो शेर व शायरी की बात करने लगे, तो उन्होंने किसी शायर का नाम लिया। मैं उनका नाम नहीं लेता चूँकि वो बुज़ुर्ग हैं, जिनका नाम लिया, शायर का नाम लिया, तो साथ ही उन्होंने खाम गालिब को घसीट कहने लगे गालिब उनके सामने क्या है। तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा भाई बुजुर्गी अपनी जगह पर और फन अपनी जगह पर। जिन बुजुर्ग का आप नाम ले रहे हैं, बुजुर्गी की बात करें तो गालिब उनकी खाके पा भी नहीं कि वो बुजुर्ग है, सारी बात है, हम उन्हें मानते हैं, सार आंखों पे रखते हैं। लेकिन अगर फन की बात करो, फन्ने शेर की, तो फन्ने शेर में गालिब वाला शुआरा है, वो उसके कमाले फन को नहीं पहुंचते बुजुर्ग, जिन बुजुर्गों की आप बात कर रहे हैं। बहर खैर वो मुसिर रहा, तो उसने उन बुजुर्गों का नाम लिया तो कहा नहीं आपने उनको पढ़ा नहीं होगा ना। मैंने फिर उनको लाइन से उसी बुजुर्ग के अशार सुनाए, ये बावर कराने के लिए कि भाई उन बुजुर्गों से भी हमारा वास्ता है। शेर सुना के अब जब गालिब की बात आई ना, तो मैंने उनको कहा, उन्होंने गालिब का एक शेर आलिम साहब ने सुनाया, वो घिसा पुटा सा मशहूर आसान शेर सबको याद है, वो सुना दिया जो याद था। उन्होंने कहा मैं गालिब के दीवान का पहला शेर, गालिब के दीवान का पहला शेर, ये शेर आप पढ़कर इसका सही मफहूम समझा दो तो मैंने कहा मैं आपको लिख के दे दूंगा कि आप आलिम, आप इसका सही मफहूम खाली समझा दो। उसके दीवान का पहला शेर, उर्दू दीवान की बात कर रहा हूं। ये मुहाकमा करना कि गालिब और फलां मुहाकमा करना, ये बड़ों का काम है जो खुद माहिर फन हो। आपका जो इल्म है, जो आपकी फील्ड है, उसके एतबार से है। हर बंदे की अपनी एक्सपर्टी होती है ना, जिस फन का जो माहिर होता है उसे उसी फन में गुफ्तगू करनी चाहिए, दूसरे फन में हाथ नहीं डालना चाहिए। मना किया गया है कि जब बंदा अपने फन से हटकर दूसरे फन में हाथ डालता है ना, मार खाता है और बड़े बुरे तरीके से मार खाता है। देखा, आपका जो फन है, आप अपने फन की बात करें, इसमें आप दखल अंदाजी ना करें। इसमें तो आपका नहीं, मैंने जैसी मैंने शेर पढ़ा, अब वो आए बाएं शाएं, कभी इधर देखें कभी इधर देखें, कभी आए करें कभी बाएं कभी शाएं। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं ये तो आपने बहुत मुश्किल पढ़ दिया ना। तो मैंने कहा ये तो आपकी काबिलियत का हाल है कि आप उसके उर्दू दीवान का जो पहला शेर है उसका मफहूम आप सही किसी को समझा नहीं सकते, और बैठे आप मुहाकमा करने गालिब का किसी के साथ कि जनाब गालिब छोटा शायर है, वो गालिब से बड़ा शायर है। ये आपको ज़ेब ही नहीं देता। बहरहाल, तो गालिब का जो उर्दू दीवान है, ये तो वैसी बरसबीले तस्करा बात निकल आई। तो यानी आजकल हाल ये है कि अगले उसके दीवान के पहले शेर का मफहूम सही समझाना, ये जो है कईयों के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे खासे जो है वो ये नहीं कर सकते। तो आप अंदाजा लगाइए कि गालिब का असल रंग क्या होगा। तो गालिब का मुश्किल पसंदी उसकी मशहूर। मिर्जा को अल्लामा फजल खैराबादी ने ये बात फरमाई, आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात उठाएं और अल्ताफ हुसैन हाली की यादगार गालिब उठाएं,
लिखा हुआ है कि इन्होंने ये बात कही कि भाई इतना मुश्किल लिखा हुआ है, ये लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, तो इसको थोड़ा आसान करो। बल्कि मोहम्मद हुसैन रज़ा ने तो यहाँ तक कहा कि मिर्ज़ा खानी और अल्लामा फजल खैराबादी इन दोनों ने मिलकर जो है उनके दीवान का इंतखाब किया और 2/3 दीवान खारिज कर दिया। ये तो बचा हुआ है वो इतना मुश्किल है कि वो लोगों को पल्ले नहीं पड़ता, तो जो वो होगा वो कैसा होगा। तो यानी मिर्ज़ा गालिब ऐसे आदमी की तस्हीह का फरीदा सरअंजाम दे रहे हैं अल्लामा फजल खैराबादी कि शेरी ज़ौक़ आपका कितना आला था कि मिर्ज़ा गालिब ऐसे आदमी की भी आप दीवान के इंतखाब का काम भी कर रहे हैं और तस्हीह का काम भी कर रहे हैं। और बाकी दीनी तौर पर तो जाहिर बात है वो तो आपका पाया ऐसा बुलंद कि मिर्ज़ा गालिब को आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, पढ़ाई, समझाई। आपके कहने पे ही गालिब ने मसनवी लिखी, जिस मसनवी के अंदर जो है वो मामूलात अहले सुन्नत का जिक्र है और जिसमें इम्तिनाए नज़ीर हुजूर नबी के साथ की नज़ीर वाला मामला कि हुजूर के जैसा कोई नहीं हो सकता, तहते कुदरत नहीं है हुजूर का मसील, हुजूर का नज़ीर। मसनवी के अंदर गालिब वो किसके कहने पर उसने लिखा और वो तालीम और तलकीन उसको किसने की? अल्लामा फजल खैराबादी रहिमहुल्लाह। अल्लामा फजल खैराबादी रहिमहुल्लाह जिस तरह माकूल के इमाम हैं, मनकूल के भी ऐसे इमाम हैं। मनकूल नकली उलूम, कुरान, हदीस, फिका। बाद लोगों ने लिखा कि जनाब अब चूंकि इस्माइल देहलवी के साथ अल्लामा फजल खैराबादी का मामला है, इस्माइल देहलवी के साथ आपका इख्तिलाफ हुआ। इस्माइल देहलवी के रद में आपने लिखा था। इस्माइल देहलवी ने जब तक़वियतुल ईमान लिखी, तक़वियतुल ईमान में एक इबारत थी कि उस शहनशाह हकीकी की शान तो ये है कि एक कलिमा कुन से चाहे तो करोड़ों नबी वली जिबरील, करोड़ों नबी वली रसूल जिबरील और मोहम्मद के बराबर पैदा कर डाले। ये इबारत तक़वियतुल ईमान में लिखी इस्माइल देहलवी ने। इस इबारत पर अल्लामा फजल खैराबादी ने नक़्द किया। एक तहरीर आपने लिखी, तकरीर एतराज़ात बर तक़वियतुल ईमान, इस नाम से। इसमें आपने इस मसले को उठाया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का मसील, हुजूर का नज़ीर मुमतने है, मुमतने बिज़ात यानी इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो तहते कुदरत नहीं है, ये इबारत दुरुस्त नहीं। तो आपकी इस ये तक़वियतुल ईमान पे जो एतराज़ात हुए, अव्वलीन उसके रुदूद में से जो नक़्द उस पर हुए उनमें से अव्वलीन उनमें से एक अल्लामा फजल खैराबादी की, यानी ये रद्दे मुब्तदिया का सेहरा भी हजरत के सर है इस खित्ते में, कि इब्तिदा इसकी भी आपके सर है। तो वो आपने जब रद्द किया तो उसने जवाब में रिसाला लिखा यक रोज़ी के नाम से, उसमें उसने जवाबात दिए। तो अल्लामा ने उसके यक रोज़ी की तरदीद करने के लिए किताब लिखी, तहकीकुल फतवा फी इब्ताल तग़वा, फारसी में तहकीकुल फतवा फी इब्ताल तग़वा। इसमें एक तो जो शफात का अकीदा था इस्माइल देहलवी का, उसको रद्द किया और साबित किया। शफात बिल वजाहत भी साबित है सरकार के लिए, शफात बिल महब्बा भी साबित। शफात की जो उसने 3 किस्में करके रद्द किया था, शफा बिल वजाहा, शफा बिल महब्बा, शफा बिल इज़्न। तो उसने कहा था शफा बिल इज़्न तो साबित है, शफा बिल वजाहा और शफा बिल महब्बा नहीं होती। अल्लामा ने तफसीली दलाइल जिक्र किए हैं, शफा बिल वजाहा को भी साबित किया, शफा बिल महब्बा को भी साबित किया। और दूसरा ये इम्कान नज़ीर वाला जो मसला है, जो उसने इम्कान नज़ीर की बात उठाई थी, आपने उसको तफसील से ऐसे बिल्कुल कला कमा कर दिया तहकीकुल फतवा में। अब जब एतराज़ात के जवाब दिए तो इस्माइल देहलवी की तरफ से दोबारा उसके जवाब में कोई तहरीर नहीं आई और उसे कुछ अरसे बाद वैसे ही वो वहाँ चला गया था सरहद, और फिर उसके बाद इंतकाल हो गया वहाँ। उसके इंतकाल के कई साल बाद हैदर अली टोंकी साहब ने किताब लिखी रद में, उसके जवाब में फिर अल्लामा ने किताब लिखी इम्तिनाउ नज़ीर, और वो कला कमा कर दिया, बेखुद से उखाड़ दिया तमाम दलाइल का। ये इम्तिनाउ नज़ीर किताब है, असल किताब फारसी में है, ये इसमें असल किताब भी है और इसका उर्दू तर्जुमा भी है, इम्तिनाउ नज़ीर, ये अल्लामा फजल खैराबादी की। ये मैं इसलिए लिया आप इस लोग इसकी ज़ियारत भी कर लें। और ये तहकीकुल फतवा फी इब्ताल तग़वा जो है, ये असल किताब भी मौजूद है अंदर फारसी, और उसका उर्दू तर्जुमा भी शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। ये किया उस्ताद अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब रहिमहुल्लाह, उन्होंने ये किताब शायरी उस्ताद शरफ साहब ने करवाई
तर्जमा भी उन्होंने किया, बड़ा शानदार तर्जमा किया इसके अंदर। अच्छा, बाज लोगों ने ये एतराज किया, बाज लोग लिखते हैं ना लिखारी, तो वो लिखते हैं, कहते हैं जनाब चूंकि वो गालिब से थोड़ा मुतासिर हैं या इस्माइल देलवी से मुतासिर हैं, झुकाव उस तरफ है, तो वो किताबों में कहते हैं कि भाई ये जो फजल खैराबादी साहब थे ये माकूली थे, मंतकी आदमी थे, और इस्माइल देलवी साहब जो है वो कुरान और हदीस के आलिम थे, तो उनकी जो दलीलें थी वो नकली थी और उन्होंने अकली दलीलों से इधर की बातें की। ये बहुत बड़ा मुगालता है। ये जो लोग इस तरह की बातें कहते या लिखते हैं उनमें से अक्सर तो वो हैं कि ना नकली उलूम उन्हें हासिल हैं ना अकली उलूम हासिल हैं, और कई तो वो हैं कि उन्होंने असल किताबें देखी तक नहीं है, पढ़ने की जहमत गवारा करना दूर की बात है, असल किताबों की ज़ियारत से ही महरूम है, और फिर भी तबसरे किए जा रहे हैं कि ये मंतकी फलसफी थे, वो नकल उलूम नकलिया के आलिम थे, उन्होंने कुरान और हदीस की बात की, उन्होंने मंतक फलसफे की बातें इधर उधर की दोहरा दी। तो एक तो ये रद्द तो अपनी जगह पर, लेकिन साथ ही मैं एक और वजाहत कर दूं कि नकल की बात कि भाई अल्लामा ने सिर्फ इसमें अकली बातें की हैं, अकली नहीं है। 59 आयात हैं, कितनी? 59। हदीस कितनी है? 77 कितनी? 77। किताब का आप हजम देखें, साइज देखें, ये तर्जमे समेत है, तो असल किताब तो आधी कर लें आप। इतनी सी किताब के अंदर 59 आयात, 77 अहादीस, और जो आसार जिक्र किए ताबईन के, तबा ताबईन के 26। तो फिर आप कह रहे हैं कि जनाब मंतकी दलीलों से खाली वो किया है। ओ भाई, मंतकी नहीं, नकली अकली दोनों दलाइल दिए हजरत ने। इतने से रिसाले के अंदर उन्होंने इतने सारे नकली दलाइल जिक्र किए, ये आपको नजर नहीं आ रहे? हाँ, नजर तो तब आए कि आपने असल किताब देखी हो, ज़ियारत की हो, उसके बाद उसको पढ़ो। जब आपने ना असल किताब पढ़ी नहीं, ना पढ़ने की आप में अहलियत है, ना आपने असल किताब देखा, फिर तबसरे करने का आपको शौक है, आप लिखे जा रहे हैं जनाब, एक तरफ जानिबदारी, पार्शल जानिबदार होकर आप सिर्फ लिखे जा रहे हैं। इंसाफ का खून ना करें, इंसाफ का खून नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह ने जब ये काम किया है, इस पर तकरीज़ात हैं, तकरीज़ात शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह के अपने खानवादे की, इस्माइल देलवी साहब के अपने रिश्तेदारों की, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के पोते, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी के भतीजे, शाह मखसूसुल्लाह देलवी और शाह मूसा देलवी, उनकी तकरीज़ात मौजूद हैं। इस पर मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा की तकरीज़ मौजूद, इम्तिना नज़ीर की भी इस तरह उन लोगों ने तायद की। और जो दिल्ली में जब मुनाजरा हुआ था, उस मुनाजरे में भी, जिसमें इस्माइल देलवी साहब मुनाजरा हार गए थे, जामे मस्जिद दिल्ली में जवाब नहीं दे पाए थे, उस मुनाजरे के अंदर भी जो तकरीज़ात हैं, उस मुनाजरे में जो तस्दीकात हुई, जो फतवा कुफ्र तौर पर उस पर जो तस्दीकात वगैरह थी, उसमें अल्लामा फजल खैराबादी की तस्दीक मौजूद, और शाह मूसा देलवी, शाह मखसूसुल्लाह देलवी, इन सब की मौजूद हैं तस्दीकात और तकरीज़ात, और उसकी रूदात भी मौजूद है। सैफुल जब्बार, शाह फजल रसूल बदायूनी की किताब है सैफुल जब्बार, उसमें वो रूदात छपी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वो किताब भी पब्लिश्ड है, मतबू है, उसमें उसका मुताला किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे बड़े सगीर पाक हिंद में जहाँ जहाँ तखस्सुस फिल फिक़्ह होता है, तो बाज़ जगहों पर तखस्सुस के निसाब में दाखिल है किताब अल-मुतक़दुल मुंतक़द। अल-मुतक़दुल मुंतक़द किताब है शाह फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह की, अकायद की किताब है अरबी में। उस पे आला हजरत का हाशिया भी है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह का अल-मुतमदुल मुस्तनद के नाम से आला हजरत का हाशिया छपा हुआ है वो। तो ये जो किताब है अल-मुतक़दुल मुंतक़द, इस किताब अल-मुतक़दुल मुंतक़द पे दुरूशी पढ़ने की मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। ये जो किताब है अल-मुतक़दुल मुंतक़द, इस किताब पे अल-मुतक़दुल मुंतक़द पे अल्लामा फजल खैराबादी की तकरीज़ मौजूद है। क्या इनकी? और मैंने जैसे भी बात की थी ना खुशतबी की, कि मैं कह रहा था कि वो गालिब के उस पर छेड़ता हूँ, तो इसी तरह बाज़ औक़ात मैं अगले को ये ज़ाहिर करने के लिए कि भाई अभी तक आप जो है वो उस मतलूबा मकाम तक नहीं पहुँचे कि आप अपने आप को आलिम कह सको, तो कभी कभी मैं वो तकरीज़ सामने रख देता हूँ अगले के, कहता हूँ ज़रा ये इबारत जो है पढ़ के समझाए, और कहता हूँ ये इबारत पढ़ के समझानी, ऐसी वो उन्होंने तकरीज़ लिखी है। यानी अल्लामा फजल खैराबादी का ये मैं इस पे जिक्र कर रहा हूँ कि इनकी नज़्म व नसर दोनों इतनी फसीह व बलीग, और जैसे हमारे उर्दू में उर्दू मुअल्ला है, ऐसी अरबी लुगतुल फुसहा अल अरबियतुल फुसहा उसका आला शाहकार होती है, आपकी नज़्म भी आपकी नसर भी।
تو حالانکہ تقریض ہے عقائد کی کتاب پر، اور جو ہے وہ تقریض مختصر سی تقریض ہے، لیکن ایسا آپ نے اس میں پیرایہ بیان اختیار کیا ہے کہ آج کے جو اہل علم کہلانے والے ہیں اچھے وہ اس کی درست عبارت نہیں پڑھ سکتے کہ جائے کہ اس کو سمجھنا ہو کرنا. ایسا آپ کا علمی قد و قامت تھا، یہ آپ کا پایا ایسا تھا علامہ فضل خیر آبادی کا. اور جو جنگ آزادی کی بات ہوئی، بس آخری بات اور پھر دعائے خیر کرتے ہیں. جنگ آزادی کی بات ہوئی علامہ فضل خیر آبادی کی، تو جنگ آزادی میں جو فتویٰ جہاد تھا اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوا، چونکہ یہ جنگ آزادی والا معاملہ اتنا زیادہ مشہور ہے اس لیے میں اس کو زیادہ روشنی نہیں ڈال رہا، بس اجمالی اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں اصل بات کی طرف. ان کی کتاب کا بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو سزا ہوئی عبور دریائے شور، کالا پانی کی سزا دے دی گئی آپ کو. وہاں کالا پانی آپ جہاں گئے، جہاں آپ کا وصال ہوا ہے، تو وہاں آپ نے کوئلوں کے ساتھ کتاب لکھی، کچھ جو ہے وہ کاغذوں پر، کچھ کپڑوں پر، اور مفتی عنایت احمد کاکوروی صاحب رحمہ اللہ کے ذریعے وہ بعد میں بھجوائی دوسروں کو. وہ تھی الثورۃ الہندیہ کے نام سے. اس کے اندر آپ نے ایک تو قصائد لکھے ہیں، عربی قصائد، جن میں آپ نے انگریزوں کے مظالم ذکر کیے اور اسباب کیوں بغاوت ہوئی، جنگ آزادی کیوں ہوئی، اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے. اس کے علاوہ نثر میں بھی لکھا ہے الثورۃ الہندیہ. تو وہ الثورۃ الہندیہ اصل کتاب بھی موجود ہے، اور اس اصل کتاب کا ترجمہ بھی استاد شرف صاحب نے، علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے کیا باغی ہندوستان کے نام سے. استاد شرف صاحب کہہ رہا ہوں کیا، علامہ فضل خیر آبادی کے اپنے ہی شاگرد تھے عبدالشاہد خان شروانی، ترجمہ انہوں نے کیا. استاد شرف صاحب نے اس کو پہلی مرتبہ شائع کروایا تھا یہاں لاہور سے، اور اس پہ انہوں نے مقدمہ بھی لکھا. مکتبہ قادری حضرت نے بنایا ہوا تھا، علامہ شرف قادری صاحب رحمہ اللہ نے، انہوں نے اس مکتبے سے شائع کیا باغی ہندوستان کے نام سے. تو وہ کتاب یہاں پاکستان سے بھی چھپی ہے، اب ہند سے بھی چھپی ہے. تو ایک کتاب آپ کی ہے ثورۃ الہندیہ، وہ کتاب بھی تھی میرے پاس، لیکن چونکہ وہ کتابیں جو ہے وہ کچھ دارالفتاح میں رکھی ہیں، کچھ دارالحدیث میں ہیں، کچھ گھر پر ہیں، کچھ دوسری جگہوں پر ہیں. تو جو اس وقت میں نکلتے ہوئے جو میرے سامنے ہی میں 3 اٹھا کے لیا، ورنہ دل میرا تھا کہ میں ساری کتابیں آپ کو لا کے حضرت کی جو پبلشڈ ہیں دکھاؤں. تو وہ بھی چھپی ہوئی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں. وحدۃ الوجود پہ ایک حضرت نے کتاب لکھی ہے، یہ تو خیر عوام کے پڑھنے کی نہیں ہے، لیکن اہل علم جو ہے، الروض المجود فی تحقیقی وحدۃ الوجود، بہت شاندار رسالہ آپ کا عربی میں. اس میں آپ نے فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں وحدۃ الوجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. دلائل کشفیہ نہیں ذکر کیے اس میں جو ہے وہ یہ دلائل ذکر کیے، منطقی فلسفی دلائل ذکر کر کے آپ نے وحدۃ الوجود کے آپ قائل تھے، پیر پٹھان کے خلیفہ کے شاگرد ہیں، اور فصوص الحکم ابن عربی کی پڑھنے والے ہیں، تو ظاہری بات ہے وحدۃ الوجود کے قائل تھے. تو بڑا جو ہے وہ شاندار رسالہ ہے، وہ بھی چھپا ہوا ہے، پبلشڈ ہے، عام دستیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، علامہ دل تو کر رہا ہے اور بھی بات کروں، لیکن چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور آپ کا یہ روشنی نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیے، تو پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر کسی موقع پہ مزید کلام کریں گے حضرت کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ علم دین کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے، اہل علم کی محبت راسخ ہو، اہل اللہ کی محبت ہمارے قلب میں راسخ ہو، اور ہم بلا امتیاز تمام اہل اللہ سے کسب فیض کرنے میں اپنی شان سمجھیں، اس میں اپنی عزت سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے فیض و برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ بھی اپنے خاص لطف و کرم کا نزول فرمائے. جو کوئی غلطی کوتاہی کسی بھی طرح کی بیان میں ہوئی ہو، فکری، قلبی، لسانی، کسی بھی طرح کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عفو کا خواستگار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور غلط بات کو ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان سے محو فرما دے، درست باتوں کو ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان میں راسخ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.